धवन ने आज अपनी खेल शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था द वन स्पोर्ट्स का शुभारंभ किया। द वन स्पोर्ट्स जमीनी स्तर से ही छोटे बच्चों के लिए उल्लेखनीय प्रशिक्षण स्थापित करने की दिशा में काम करता है। द वन स्पोर्ट्स हर एथलीट और खेल प्रशिक्षकों के लिए बेहतर भविष्य के लिए सीखने के प्रचुर अवसर पैदा करेगा। द वन स्पोर्ट्स का उद्देश्य एक सुरक्षित सीखने का माहौल बनाना और बच्चों को उनके खेल समय का आनंद लेने के लिए मार्गदर्शन करना है। अकादमी ने ग्रासरूट्स इनोवेशन प्रोग्राम और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं और आधार स्तर पर एक खेल संस्कृति विकसित करने और अतिरिक्त स्कूलों और अकादमियों के साथ हाथ मिलाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। I think the next generation of the athletes has been on my mind for a long time now, and इसी बात को ध्यान में रखते हुए establish करने जा रहा हूँ द वन स्पोर्ट्स right from grassroots level। द वन स्पोर्ट्स भारत भर के स्कूल और कॉलेजेस के साथ काम करेगा, जहाँ पे स्पोर्ट्स एज अ करिकुलम पे फोकस किया जाता है। द वन स्पोर्ट्स is established to provide a platform for coaches and athletes to showcase their true potential in the field of sports, and me being an active cricketer, मेरा फर्ज बनता है to support the next generation of athletes in various sports, and सबसे बेस्ट तरीका to take this forward is to empower young children with fun-filled activities, based learning and quality training for various sports. So let's come together and be a part of the One Sports initiative. So here we are with the One Sports, and I'd like to thank my team first of all, जिन्होंने इतनी सारी मेहनत करी है इसको यहाँ तक पहुँचाने में, and I feel कि I'm very blessed and I've done so well in my cricketing career. It's time for me to give it back to the society by creating good academies, sport academies, not just in cricket but as well as in other sports as well, ताकि we can groom the younger generation into good sports people, as well as sports make them very disciplined in life and quite active, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो सारे आईपैड पे या फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो खेलना बहुत ज़रूरी हो गया है। और जो एक टीम बॉन्डिंग रहती है, टीम बॉन्डिंग को समझना, आई फील कि when the kids gonna get exposure in good academies, for sure they're gonna learn it more over there, and yep, so this is an initiative by us. देश में स्पोर्ट्स को बढ़ाएं और जो यूथ है, यंगर जनरेशन है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बेस दें ताकि वो और अच्छे तरीके से और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार हो सके और देश का नाम रोशन करें। सी आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड after realizing that God has blessed me with so much, it's my responsibility to give it back to the society, and with my knowledge or with my experience and with my inputs in my academy, of course I'm sure that will create a huge impact for the younger generation, not just skill wise or fitness wise but mental health wise as well, emotional health wise as well. I am a big believer in that, and as we all know that a lot of young people or even adults as well going through a lot of anxiety and stress these days. So when you do some sort of physical fitness or play sports, you release great positive hormones, and at the same time having a knowledge or spiritual study which can enhance your life in a very beautiful manner. Cricket in me, and I'm not leaving cricket at the moment because I'm opening academy doesn't mean that I'm leaving cricket. And yeah, I was very happy with the West Indies tour, and yeah, I'm gonna play and see. You don't know that you're gonna live tomorrow or not. So 4-5 years is a long time back. Do you see yourself in the T20 World Cup, please? See, I haven't played T20 for any team long time, so I don't know, right? Next year World Cup. So my duty is to just keep myself fit and strong, and I just keep performing well, and let's see what opportunities आते हैं। जैसे हर एक एरिया में रहते हैं, तो एक वो होता है कि नंबर होता है कि इतने हम गरीब बच्चों को लेंगे और उनको फ्री में भी कोचिंग, फ्री में कोचिंग देंगे, तो वो बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो तो एक CSR का पार्ट भी रहता है कि जो बच्चे सपोर्ट करे, जो अच्छा टैलेंट है उसको सपोर्ट करें, और फिर मेहनत करें कि कहाँ से उसके लिए स्पॉन्सरशिप भी लाई जाए। जब हम छोटे थे, कभी हम किसी चीज़ को नहीं अफोर्ड करते तो हमारे को भी सपोर्ट दिया जाता था।
तो वैसे ही वो सपोर्ट हम आज जैसे जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो हाँ जी बिल्कुल क्या लग एब्सोल्युटली। रहा है आपको स्पोर्ट्स एजुकेशन में इस वक्त? हाँ जी अभी मिसिंग क्या लग रहा है आपको स्पोर्ट्स देखिए एजुकेशन में? काफ़ी अच्छी अकेडमीज भी हैं यहाँ पे। आई फील कि स्पोर्ट्स के साथ जो एक स्पिरिचुअलिटी होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन भी बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरता है। तो कई स्पोर्ट्समैन ऐसे होते हैं जो बिखर जाते हैं, कई होते हैं जो Mental health. मेंटल हेल्थ से भी गुजरते हैं, क्योंकि हमारे उसमें तो क्या है कि सक्सेस भी सामने है या जो नेगेटिविटी वो भी सामने, तो उसको कैसे हैंडल करना है। सोशल मीडिया आज की डेट में नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, तो सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए भी आपके एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए। वो चीज़ होगी, सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ, ये होगा, तो बड़ी सारी चीज़ें। इंडियन वुमेन टीम ने अपना क्रिकेट स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर लिया है। अब तो जब हम देखते हैं तो फील्ड में वो हमसे भी अच्छे टाइप लगा रहे होते हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम एंड आई एम श्योर दैट दे गोना डू रियली। में हम बताना चाहेंगे जो ATC लिथियम बैटरी है, ये अपने जो भी बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए जो भी काम करते हैं, जो धवन सर कर रहे हैं, उसको स्पॉन्स करते हैं हम। ठीक है कि हम भी चाहते हैं कि क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज पहुँचे, वो भी अपने डेवलप हो पाए। यही चीज़ हम बताना चाहते हैं और इसीलिए हम इसको स्पॉन्सर करते हैं। बिल्कुल बच्चों को बेहतर जानकारी मिलेगी, क्योंकि एक अच्छे गाइडेंस के अंदर ही बच्चा अच्छी ग्रो कर सकता है। क्योंकि जब एक रेपुटेटेड बंदा अगर मान लीजिए किसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग देता है या उसको सुपरविज़न करता है, तब जाके एक अच्छा मटेरियल रेडी होता है, जो आगे जाके अपने इंडिया के लिए भी क्या नाम है अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट लेके आता है और देश का नाम करता है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एकेडमी से जुड़े और देश का नाम रोशन करें। सर स्पोर्ट्स में और कौन कौन सा इवेंट है जो इस स्पोर्ट्स में शामिल है? सर अभी क्रिकेट के अलावा जैसे इसमें अलग अलग स्पोर्ट्स है, स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, रैकेट, और भी कई सारे स्पोर्ट्स हैं। तो अभी जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये स्टार्ट करते जा रहे हैं, ऐसी हमें नॉलेज है। ये जो नया इनिशिएटिव है शिखर सर के द्वारा, ये बहुत ही यूनिक सा है, क्योंकि इसमें सारे स्पोर्ट्स को कंबाइन किया गया है। और बेसिकली हम क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? किस तरह का ये प्लेटफॉर्म है? आने वाले यूथ के लिए क्या मैसेज है? बेसिकली आने वाले यूथ्स के लिए इसमें क्या है, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो स्विमिंग से हो, चाहे वो एथलीट से हो, क्रिकेट से हो, फुटबॉल से। एक साथ एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म मिला है सबके लिए, जिसमें वो अपने हुनर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।